Hello students, you are most welcome on Digital Maths. Clear? See, up to now we have gone through chapter number 3 of class 8, in which I have covered introduction part, the introduction to the quadrilaterals, different types of quadrilaterals was there, and I have covered exercise 3.1. So if you have not gone through that videos, please I will request कि आप वो पहले videos देखें, उसके अंदर बेसिक जो भी हमारे concepts हैं, ideas है वो clear करें, then come to the exercise 3.2. And if you have gone through that videos, then exercise 3.2 will be easy for you and easy to understand. अच्छे से practice करें, अच्छे से लिखें और सब कुछ. See, while you are attending a maths video या maths lecture attend कर रहे हो या maths video देख रहे हो, एक notebook और pen अपने पास रखो, so that you can write each and everything which you want to mention in that particular books और वो आपको helpful रहेगा. So before starting exercise 3.2, we will go with some details. It is sum of exterior angles of quadrilateral is equals to what? See, as we have gone in exercise 3.1. 3.1 exercise के अंदर हमने देखा था ट्राइंगल्स के एक्सटीरियर एंगल का एडिशन देखा था. पॉलीगॉन, मेनली पॉलीगॉन्स के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का एडिशन होता है 360 डिग्री. सिमिलरली हमने ट्राइंगल्स का देखा था, क्वाड्रिलेटरल्स के देखे थे. तो here also we have been given quadrilaterals. This is the quadrilateral: exterior angle 1, exterior angle 2, exterior angle 3, exterior angle 4. So sum of all these angles, sum of exterior angles of quadrilateral is equals to 360 degree. हमेशा 360 डिग्री होता है. Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4, that is equals to 360 degree. ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का ये रिलेशंस और ये जो हमारा मैंने बताया है that you should learn and remember these things because it will be helpful in exercise 3.2. exercise 3.2 के अंदर हमारे ये helpful रहेगा. First question of this exercise, let's start with the first question of the exercise. Find x in the following figure. आपको क्या करना है, x find करना है. So see, 125 and x. तो as I said, हमने पहले ही डिस्कस किया था और लास्ट एक्सरसाइज 6 मींस 3.1 के अंदर भी हमें फाइंड हुआ था दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन that is equals to 360 degree. So here 125 degree plus 125 degree plus x equals to 360 degree. So 250 degree plus x equals to 360 degree. So x equals to what? 360 degree minus 250. ये कितना हो जाएगा? 110 डिग्री. So x equals to 110 डिग्री. समझ में आया? Let's go once again. Proper वे में हम लोग देखते हैं वापस. As just we recalled, sum of exterior angles of polygon equals to 360 degree. Obviously बात है, हम लोग याद करते हैं ना, last time हमने दिखा था 360 degree. So here 125 degree plus 125 degree plus x equals to 360 degree. So 250 degree plus x equals to 360 degree. So 250 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव राइट हैंड साइड में RHS. तो x equals to 360 minus 250, x equals to 110. तो आपको की है x की, that is 110 degree. Clear? समझ में आया? Now next, moving on to the next question. Find x in the following figure. आपको सेकंड फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है. देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, इट इज एन पेंटागन, लेकिन पेंटागन हो या कोई भी हो, पॉलीगॉन का एडिशन जो है सम ऑफ पॉलीगॉन या सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ये चीज तो आप फिक्स कर लो, दिमाग में फिट कर लो, चाहे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नेनागन और डेकागन, whatever type of polygon it is, the exterior angle ka sum would be always 360 degree. So here you can see 70 degree, 60 degree, it is given 90 degree, it is x, and here if this is 90 degree, since it is forming a linear pair with this one, so 90, 180 minus 90, that is equals to 90 degree. तो ये वाला जो एंगल है बाहर का एक्सटीरियर एंगल, that will be also 90 degree. Okay, let's go with here 60 degree plus 90 degree plus 70 degree plus x plus 90 degree, मतलब सबके सब एंगल्स ले लिए. 60 degree, 90 degree, 70 degree, x plus 90 degree equals to 360 degree. तो अब देखो 60 plus 90 that is 150, 150 plus 70 that is 220, 220 plus 90 that is 310. So x plus 310 degree equals to 360 degree. Now we will take this 310 on
right hand side RHS. So here it is positive, on right hand side it will become negative. So x equals to 360 degree minus 310. What will be the value of x? X equals to 50. समझ में आ रहा है? See, तो whatever the problem is, आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, you have to mention in the comment section. And if you have understood these questions or all the questions, then too you write that yes, I have understood everything. And if you have any problem, you can comment in the section that this some I have a problem. So we'll try to explain it again, or otherwise mobile is in your hand, आप वापस रिवाइंड कीजिए, वापस देखिए, go through the video once again step by step and write in a notebook. एक बार आप लिखोगे प्रॉपर वे में देख देख के, तो आपको इजी वे में हर एक स्टेप समझ में आ जाएगा कि किस तरह से करना है। क्लियर? तो गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप प्रॉपर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स। सी, हर एक रेगुलर पॉलीगॉन है 9 साइड का, आपको पता है कि 9 साइड्स हैं तो 9 एंगल्स होंगे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल्स भी कितने होंगे 9 होंगे, तो डायरेक्टली 360 हमारा टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, तो 360 डिवाइड बाय 9, दैट इज ईच एक्सटीरियर एंगल वुड बी ऑफ 40 डिग्री, रेगुलर पॉलीगॉन है इसलिए। चलो सी, हियर देयर आर 9 साइड्स, ऑब्वियस सी बात है 9 साइड्स, तो एज वी नो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री, हियर पॉलीगॉन इज रेगुलर पॉलीगॉन, सो ऑल 9 एंगल्स आर इक्वल, so therefore 9x, so 9 के 9 एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, so 9x equals to 360 डिग्री, तो x equals to 360 upon 9 यानी 40 डिग्री, यानी जो रेगुलर पॉलीगॉन है हमारे 9 साइड्स का, रेगुलर पॉलीगॉन विद 9 साइड्स would be having angle, that is each exterior angles will be equal to 40 डिग्री, सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स क्या एंगल्स मेजरमेंट के होंगे 40 डिग्री। नेक्स्ट 15 साइड्स, अब रेगुलर पॉलीगॉन है, सेम थिंग 360 डिग्री ऑन 15, डिवीजन आपको आता है नहीं आता है तो सीख लो कर लो, लेकिन 315 2 जा 30, 60 15 4 जा 60, you will get 24 डिग्री ईच, यानी जितने साइड्स हैं नंबर ऑफ साइड्स से डिवाइड कर दो डायरेक्टली, you will get each exterior angle value. So let us go, here 15 sides are there, as we know sum of exterior angles of polygon that is equals to 360 degree, ये ऑब्वियस सी बात है, हमें याद रखना है, this has to be remembered that exterior angles का addition in a polygon, triangle, quadrilateral, pentagon or any polygon, that is 360 degree. So here polygon is regular polygon, so all 15 angles are equal, 15x equals to 360, so x equals to 360 upon in 360 degree upon 15, तो आपने देखा ही था मैंने रिवीजन किया था, that is equals to 24, x की वैल्यू क्या है 24 डिग्री, वैल्यू ऑफ x is डिग्री, समझ में आ रहा है, क्लियर है एवरीथिंग, होप इट्स बिट इजी और आपको समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट, how many sides does a regular polygon have? The measure of an exterior angle is 24 degree. अब रिवर्स करना है, पहले क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ साइड्स इट वाज गिवन in earlier question, in question number 2 number of sides was given and you have to find each exterior angle in a regular polygon, ठीक है। now what is that, आपको each exterior angle is given, what is the each exterior angle that is equals to 24 degree, ठीक है 24 डिग्री, and total sum of total sum of exterior angles that is equals to 360 degree. So now number of sides equals to total sum of angles, exterior angles means total sum of exterior angles upon value of or each exterior angle on value of each exterior angle, so that is equals to 360 degree upon 24 degree, इसको डिवाइड करोगे, so I have already given but फिर भी आप देखते हो 360 upon 24, so 24 1 are 24 to 120, तो 24 5 are, कितने साइड्स हैं 15 साइड्स, so number of sides equals to 15, same it is vice versa, उल्टा ही किया है just, so here measurement of each exterior angle is 24, so as we know measure each exterior angles of regular polygon that is equals to 360 degree upon number of sides or angles that is equals to 360 upon number of sides,
क्लियर? 24 डिग्री दैट इज 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स यानी उसको मैंने x ले लिया है, दैट इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 24, 360 अपॉन 24, तो x कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 15 डिग्री। समझ में आया? क्लियर है? तो एक एक चीज को अगर आप जब भी नोट डाउन कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, किस तरह से मैंने लिखा है, जस्ट फॉलो स्टेप्स, यू विल श्योरली गेट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, therefore polygon with exact exterior angles equals to 24 degree will be having 15 sides, will be having 15 sides, okay, will have 15 sides or will be having 15 sides. Question number 4, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165? अब इन्होंने क्या बोला है, इंटीरियर एंगल, अब इंटीरियर एंगल सारे के सारे 165 है, तो इट्स बिट कंफ्यूजन, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल दिया होता तो डायरेक्टली डिवीजन कर सकते थे, बट इंटीरियर एंगल दिया हुआ है कि हर एक, और रेगुलर पॉलीगॉन विद ईच एंगल्स 165, so now each interior angle is 165, so here the measure of each exterior angle is 180 degree minus 165, that is 15 degree। थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि देखो कोई भी है, जैसे कि ये वाला एंगल है इंटीरियर और ये वाला एक्सटीरियर, सपोज ले लिया, और 165 ये वाला डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर एंगल के साथ लीनियर पेयर बनाता है, तो टोटल लीनियर पेयर का एडिशन होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 165 दैट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, मतलब हमारा जो एक्सटीरियर एंगल कितना आया, 15 डिग्री आया। As we know, measure of each exterior angle of regular polygon equals to 360 degree upon number of sides. So 15 degree equals to 360 degree upon number of sides. Number of side मतलब x. So here x equals to 360 degree upon 15. तो x कितना हो जाएगा 24. तो 24 क्या 24 sides. तो x would be 24, मतलब जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसकी कितनी साइड्स है, 24 साइड्स हैं। Therefore, polygon with exterior or interior angle 165 degree will have 24 sides, क्योंकि हमको 165 डिग्री इंटीरियर एंगल्स के लिए पूछा है, इसलिए स्टेटमेंट भी हमने इंटीरियर के लिए लिखा है। समझ में आ रहा है? What you have to do is first of all write each exterior angle, that is 165. Now we have to find measure of each exterior angle, that is equals to 180 degree minus 165 यानी 15 degree. Now exterior angle of regular polygon, that is equals to 360 degree upon number of sides. So therefore 15 degree equals to 360 upon number of sides. So number of sides को मैंने ले लिया x, तो x equals to 360 upon 15, तो 360 को डिवाइड हमने किया हुआ है ऑलरेडी, 15 that is equals to 24. Therefore polygon with each interior angle equals to 165 degree will have 24 sides, will have 24 sides. क्लियर है? समझ में आया? हर एक चीज को प्रॉपर वे में करते जाओ स्टेप बाय स्टेप, तो आएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ए, is it possible to have regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? क्या रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो? बस सिंपल आपको क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला है कि एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल बोलो, दैट इज इक्वल्स टू टोटल हमारा सम, दैट इज 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर नंबर ऑफ साइड फाइंड करना, नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 22, ये वाला मैंने इधर लेके आया और इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आ गया, 360 अपॉन 20। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो इट इज पॉसिबल, अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है सो दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल या दिस टाइप ऑफ पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल। सो हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, 360 डिग्री 22, 22 1 जा 22, 4 0 140, 22 5 जा 110, 22 6 जा that is 132। नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आएगा, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म। चलो वन बाय वन वापस देखते हैं। Here measure of each exterior angle is 22 degree. As we know, the measure of each exterior angle of a regular polygon equals to 360 degree upon number of sides of the angles or angles, number of sides or angles. Therefore 22 degree equals to 360 degree upon number of sides. तो number of sides को मैंने x लिया, तो x equals to 360 upon 22. 360 अपॉन 22 अगर कर रहे हैं तो 16.36, आपने देखा था डिवीजन, वापस एक बार देख लो, 360 दैट इज 22, 22 1 जा 22, 140
22 6 132, 8 आया 0.0, 3 66, 14 फिर 0, तो लाइक दिस इट विल गो ऑन। सो पॉइंट में, और आपने कभी देखा है आधी अधूरी साइड, साइड तो पूरी होगी, रेगुलर पॉलीगॉन है तो सारी की सारी साइड्स इक्वल होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो 16.36 sides is not possible. Therefore, no, it is not possible for a regular polygon to have measure of each exterior angle as 22 degree. इसका मतलब कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का जो है 22 डिग्री नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, is it possible to have a regular polygon with measure of each interior angle as 22 degree? पहले क्या था, एक्सटीरियर एंगल, अब इंटीरियर एंगल। सो इंटीरियर एंगल का कैसे करेंगे? सी इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर पेयर बनाते हैं। तो 22 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एक्सटीरियर कितना होगा? 180 माइनस, ये एक्सटीरियर है, ठीक है, 180 माइनस 22 दैट इज इक्वल्स टू 158 डिग्री। इसको चेक कर लो डिवीजन करके, अगर ये डिवाइड होता है तो पॉसिबल होगा। तो वी आर गोइंग एज इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 22 डिग्री, here measure of each exterior angle is 180 minus 22, that is 158 degree. As we know, the measure of each exterior angle of regular polygon equals to 360 degree upon number of sides or angle. 158 equals to 360 upon number of sides, x equals to 360, number of sides को हमने क्या ले लिया? x. We have taken number of sides as x, तो x आपको ध्यान में रखना है कि x क्या किया, और ये मैंने सिर्फ देखो ये बता देता हूँ वापस, 158 equals to 360 डिग्री और नंबर ऑफ साइड यानी x, तो x को मैं इधर लेके गया और 158 को डिनोमिनेटर में, तो x equals to 360 डिग्री अपॉन 158, इसको डिवाइड करके देख लो तो 2.27। सी इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, 158 से डिवाइड करते हैं तो 2.27 आ रहा है, तो इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। therefore no, it is not possible for a regular polygon to have measure of each interior angle as 22। मतलब एक्सटीरियर एंगल 22 होगा तो भी पॉसिबल नहीं है, और इंटीरियर एंगल 22 होगा तो भी पॉसिबल नहीं है। So in both the cases, the regular polygon could not be having the measurement of 22 degree as an interior angle या फिर as an exterior angle। चलिए समझ में आया? Is there any doubt, any confusion? कोई भी है बेझिझक आप पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, I will be giving you out here। बट पूछोगे, ask the doubt, get the solution। So बिना पूछे तो नहीं मिल पाएगा। So if you have any doubt, you can ask here। So ask the doubt, you will get this solution sure। Next, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon y? मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल क्या हो सकता है रेगुलर पॉलीगॉन के लिए और क्यों? मिनिमम इंटीरियर एंगल, a regular polygon possible with minimum side is equilateral triangle with 3 sides and has minimum interior angles because the regular polygon can be constructed with 3 sides at least। सिंपल सी बात है, 3 साइड्स तो चाहिए एटलीस्ट मिनिमम, इंटीरियर एंगल मिनिमम, या 3 साइड्स तो हमको मिनिमम पॉलीगॉन बनाने के लिए चाहिए। तो पॉलीगॉन बनाने के लिए अगर 3 साइड्स चाहिए तो 3 एंगल्स भी चाहिए, देयर वुड बी फॉर्मिंग 3 एंगल्स। तो 3 एंगल्स का सम अगर करें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो देयरफॉर लीस्ट इंटीरियर एंगल दैट इज 180 अपॉन 3 यानी 60 डिग्री। तो मिनिमम 60 डिग्री तो पॉसिबल होगा, 60 डिग्री के बिना इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। चलिए समझ में आया कैसे करना है, वापस एक बार समझ लो। देखो, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? तो रेगुलर पॉलीगॉन जो सबसे छोटा है दैट इज विद 3 साइड्स, 2 साइड का तो कोई रेगुलर पॉलीगॉन होता ही नहीं है, 3 साइड्स मिनिमम इट इज रिक्वायर्ड। और मिनिमम 3 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगॉन को बोलते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके एंगल्स भी 3 होते हैं। तो अगर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ट्रायंगल के सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज 180 डिग्री, सारे के सारे सेम है, तो 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 3 यानी 60 डिग्री। अगर ट्रायंगल्स का बात करें, किसी की भी बात करें, 180 डिग्री टोटल 60 डिग्री जो ये है उसके बेस पे ही होगा। क्लियर, समझ में आया? विदाउट कंफ्यूजन है तो सो इसी तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। तो 60 डिग्री, देयरफॉर लीस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ इधर 60 डिग्री, और क्योंकि 3 साइड्स वाला पॉलीगॉन ही पॉसिबल है, सबसे छोटा कम साइड वाला पॉसिबल। What is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? अब क्या पूछा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो सेम जैसे इंटीरियर एंगल हमारा 60 डिग्री था,
Regular polygon possible with minimum side is equilateral triangle with 3 sides and has maximum exterior angle because the regular polygon can be constructed with 3 sides at least. तो अब हमको पता है sum of exterior angles, हम इंटीरियर एंगल्स की बात नहीं करेंगे. Sum of exterior angles इक्वल्स टू 360 डिग्री इन अ पॉलीगॉन. अभी हमने बताया था. तो टोटल 3x होंगे. 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो x इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 3 दैट इज 120 डिग्री. ये वन मेथड है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 120 डिग्री. ये वन मेथड. सेकंड मेथड में आपको बता दूं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन ट्रायंगल इज 180 डिग्री. So therefore the least interior angle equals to 180 upon 3 that is 60 degree. So exterior angle plus interior angle plus interior angle that is equals to 180 degree. So interior आपको 60 डिग्री मिला है तो exterior कितना हो जाएगा. एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री. मेथड दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. यू कैन गो विद बोथ द मेथड्स. दोनों ही मेथड यूजफुल है, दोनों ही मेथड एप्लीकेबल है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेथड से नहीं करना वो मेथड से करना है. यू कैन गो विद बोथ द मेथड्स. आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा. फिर भी कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. वापस एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाते हैं फटाफट. जो पूरा रिवीजन पार्ट है वो मैं एक बार अच्छे से आपको रिवाइज करवा दूं. क्या क्या चीजें हमको चाहिए दैट थिंग क्लियर. सी फर्स्ट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यानी कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगर कोई पॉलीगॉन है जिसका एक्सटीरियर एंगल, सपोज हम लोग ट्रायंगल की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल एंड वी हैव एन एक्सटीरियर एंगल सी, ये ए बी सी है और ये एक्सटीरियर एंगल एक्स, ये एक्सटीरियर एंगल इस तरफ आएगा, एक्सटीरियर एंगल्स वाई, ये एक्सटीरियर एंगल जेड. तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, मैं पॉलीगॉन बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी पॉलीगॉन हो, आइदर ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन और एनीथिंग, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री. इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री. पॉलीगॉन हो, देखो मैं बता देता हूं आपको, चाहे ट्राइंगल, आइदर इट इज ट्राइंगल, आइदर इट इज क्वाड्रिलेटरल, फिर क्वाड्रिलेटरल हो, या फिर पेंटागन हो. यू आर टॉकिंग कैन गो फॉर पेंटागन एल्सो. लेकिन सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर एंगल्स. तो वो चीज खास ध्यान रखना, एंगल 1 2 3 4 एंड 5, इन सब का एडिशन दैट इज ऑलवेज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री हमेशा, वो भी पॉलीगॉन्स के लिए. क्लियर. तो उसी के बेस पे फिर एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स. हम लोग बात करें अगर ईच एक्सटीरियर एंगल that is equals to total sum of exterior angle upon number of side और number of angle. डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा. आपने कैलकुलेशन सम किए तो उसके बेस पे हो जाएगा. तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. क्लियर. Okay students, we will have some quick revision what we have gone through this exercise. So here the exercise was find x in the following figure. So you have to find x, yes we have to, हमें x की value find करनी थी. So these are, as we have said that exterior angles of all the polygon is equals to 360 degree. So directly we have gone through, that is 125 plus 125 plus x equals to 360 degree. So 250 plus x equals to 360 degree. So x equals to 360 minus 250 degree. समझ में आया. ये हमने किया था. Similarly the same question was there, that here it is 90 degree given, here also it is 90 degree, and you have to find value x. And as we know that sum of exterior angle of polygon is 360 degrees, so 60 plus 90 plus 70 plus x plus 90 equals to 360 degree. So 310 plus x equals to 360 degree. So x equals to 360 minus 310. Means these things you have to remember, that we all the sum of the exterior angles, जितने भी exterior angles हैं उनका sum कितना होता है, 360 degree होता है. That you have to keep in mind. Next, see, this was the main. If you have to find the exterior angles,
what will be the minimum exterior angles if the polygon is having 9 sides, whatever the side is, suppose polygon is having n sides, so what you have to do is divide 360 divided by n. Here the polygon is having 9 sides, so 360 divided by 9, that is 40 degree. So similarly here it is 40 degree, 360 divided by 9 and 40 degree. Here it is 15 sides, so 360 divided by 15, that is 24 degree. Then here, how many sides does a regular polygon have if measure of an exterior angle is 24 degree? यहाँ पे you have been given 24 degree, आपको 24 degree दिया हुआ था कि exterior angle है, तो कितनी sides होगी? तो directly see 24 degree equals to 360 upon number of side. Clear? So number of side equals to 360 degree upon 24. So it would be 15. So आपको directly मिलेगा 15 degree. So x equals to 15, यानी number of sides कितनी होगी regular polygon की, that would be 15 degree. Clear? समझ में आ रहा है? Similarly, how many regular sides polygon each having its interior angle 165? अगर interior angle 165 है तो exterior होगा 180 minus 165, that is equals to 15 degree. So 15 degree, तो same process, we have to find out number of sides. So number of side equals to 360 degree upon 15 degree, that is equals to 24. So number of sides of the polygon equals to 24. And fifth, if is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? तो भाई देखो 360 direct divide 360 divided by 22, it is 16.36. So अगर decimal में number आ रहा है तो it is not valid. It is not possible to draw a regular polygon with exterior angle 22 degree because whole number होना चाहिए. Division अगर हो तो whole number, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, decimal या fraction में नहीं होना चाहिए. Similarly, it is possible to have an interior angle of 22 degree. भाई इंटीरियर 22 है तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 158. क्लियर? एक्सटीरियर would be 158, 180 minus 22, that is 158. तो 360 divided by 158, that is 2.27. and it is also not possible because ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो रेगुलर पॉलीगॉन फ्रैक्शन के अंदर तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता. क्लियर? देन व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? देखो मिनिमम पूछा है तो आपको पता है 3 साइड्स होते हैं, देयर आर टोटल 3 साइड्स ऑफ मिनिमम पॉलीगॉन. इससे कम साइड्स वाला पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है. तो 360 डिवाइड बाय 3 अगर कर रहे हैं तो 180 डिग्री तो उसका एक्सटीरियर एंगल मिनिमम होगा. और इंटीरियर एंगल अगर हम लोग देखें तो 180 भाई 180 डिवाइड बाय 3, दैट इज 60 डिग्री. सो 180 डिवाइड बाय 3, दैट इज 60 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स इक्वल होते हैं, तो ट्राइंगल के अंदर ही पॉसिबल है इक्विलेटरल ट्राइंगल. एंड ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल वाला पूछा है, व्हाट इफ इट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, क्या हो सकता है? सो इट इज 180 डिग्री. क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट. सो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी 120 डिग्री मिनिमम 120 डिग्री हो सकता है एक्सटीरियर एंगल, दैट इज 360 डिवाइड बाय 3 कर दिया तो 120 डायरेक्टली आ रहा है. ऐसे करो या ऐसे करो, पॉसिबिलिटी सेम है. तो thank you very much. If you found any doubt, any difficulties, please share these videos with others. Like, comment कीजिए. समझ में आ रहा है तो भी comment कीजिए. If you are not understanding, then to comment that which part, which question you are not understanding. I will try out to give you the answers, solutions, so as soon as possible. So thank you very much. And Digital Math is with you always. So take care, ध्यान रखिए. Thank you very much. Bye bye.